ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ, ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ। ਭਵ ਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। 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 ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹੁ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਜਾਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ
गुरु तेरा जीवन देखते कीजिया। दर्शन सतगुरु तेरा मैं देखते मेरे मीता चरण कमल वसै मेरे चीता। नानक एक करे अरदास विस नहीं पूर्णदास। सतसंग न मिलता भाग बिना, संग न मिलता भाग बिना। संग न मिलता, संग न मिलता ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਨੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਪਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇੱਕ ਵਹਿਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਹਿਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਧਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਧ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ 4 ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਲਾਈਮਾਨ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਨੇ। ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਹਨ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਚਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਾਰਬਧ। ਪਰਾਰਬਧ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਰਬਧ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਲੇ ਟਾਟੇ ਮੋਦੀ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
एक बादशाह के घर जन्म लैंदा, एक गरीब के घर जन्म लैंदा। जिहड़ा गरीब के घर जन्म लैंदा उसकी सारी जिंदगी गरीबी च निकल जाती। एक बारी कह दे वैल माफ़ करना गुरु की संगत, 100 बीमारी वर्गा इको कोड़ है जिहड़ा वो गरीबी है। माफ़ करना गुरु की संगत, वो सत्संग जी गरीबां च जन्म हो गया कि जिन्हें प्रारब्ध चंगे नहीं, पिछले चंगे कम नहीं किए। कोई कुड़ी बन के आ गया, कोई गूंगा बन के आ गया, कोई बहरा बन के आ गया, किसी जमदे दे हथ पैर ही नहीं है, अपाहिज हो के आ गया। सो सत्संग जी ये कर्म बनते हैं, सत्संग करन लगे हैं। साढ़े हिरदे विच पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म बैठे हुए हैं। एक बारी कह दे वैरू साढ़े हिरदे विच प्रारब्ध कर्म सारे दे बैठे हुए हैं। माफ़ करना भावें मनो भावें ना मनो। एक बारी अपने मन के झाती मारो, नेत्र बंद करके। जन्म तो लैके सास होने तक असी जिहड़े माड़े कर्म ने वो भी देखो, जिन्हें माड़े कर्म किए ने तुहाडे अंदर इस तरह खड़े ने जिवें दीवार खड़ी होवे। ठीक है कि नहीं ठीक? जिन्होंने चंगे कर्म किए ने, सत्संगत की है, नाम जपी है, भजन करता, सिमरन करता, उन्होंने जिहड़े चंगे कर्म ने जिहदी प्रारब्ध बनती वो सत्संगत दीवार बन के चंगे कर्म ने जिहड़े पहाड़ बन के खड़े हैं। वो चंगे कर्म हैं पहाड़ बन के खड़े ने, उन्होंने प्रारब्ध चंगी है। साढ़े सारे के अंतशकरण में सत्संग जी नाम के बीज हैं। किसी के थोड़े, किसी के बहुते, माफ़ करना किसी के ज़्यादा, किसी के है ही नहीं, किसी के हिरदे रूपी जमीन च कर्म है ही नहीं। असी यह फसलां देखते हैं, धान लाया, कई किस्म दी जड़ियां बूटियां धान दे विच उग पैंदियां हन। माफ़ करना गुरु की संगत, एक वक्त होवे ते दूजे नंबर ते किते बरसात पै जाए, जिहड़े जमीन दे विच बीज दबे हुंदे ने उग पैंदे हन। इस तरह साडे हिरदे विच जिहड़े नाम दे बीज दबे ने, जदों किते सत्संगत मिल जाए, एक बारी कह दे वैरू सत्संगत मिल जाए, किते कोई रब दा प्यारा मिल जाए, कोई नाम जपण वाली रूह मिल जाए, ओड़े चंगे कर्म ने। वो सत्संग उन्होंने गुरु घर जाना चंगा लगता, उन्होंने सत्संगत करनी चंगी लगती, उन्होंने सेवा करनी चंगी लगती, उन्होंने नाम जपना चंगा लगता। माफ़ करना इसी तरह सतपुरुषों का बचन मनना चंगा लगता है, गुरबाणी मननी चंगी लगती है। और जोड़े चंगे कर्म ने वो उगण की कोशिश कराया करते हैं। सत्संग जी साढ़े सारे के अंदर कईयां दे चंगे कर्म ने जोड़े वो बहुत ज़्यादा हैं। सत्संग इन्ने ज़्यादा ने कि बचपन वेले ही परमेश्वर के नाम की सत्संग जी उन्होंने याग लग जाता। माफ़ करना वो कर्म उगने शुरू हो जाते हैं। बचपन समय तो गुरुद्वारे जाना, मत्था टेकना, नाम जपना, सिमरन करना, बच्चे हो के कई बच्चों गुरु घर जाने का बड़ा शौक है, कई जाते ही नहीं। तो सत्संग जोड़े चंगे कर्म ने वो फिर उगण की कोशिश कराया करते हैं। दास नूं याद हो टाइम कि बड़े छोटे होंदे सां ते किन्ने के छोटे होंदे सां, पहली जां दूसरी जमात पढ़ते होंदे सां। ते कल भी मैं माता जी ने गल कही परसों, हालांकि उन्होंने उम्र बहुत लंबी हो गई है, तो कह लगी बस हुण जान दो, बस हुण जान दो, बड़ी लंबी उम्र हो गई। माफ़ करना गुरु की समय का माता नहीं अजे रहो। तो मैं उन्होंने पूरी सोझी है पाकिस्तान की। मैं उन्होंने कहा माता जो कोई रोटियां पकाती होंगी सां, मैं स्कूल जाता सां ते तू एक मतलब गीत गाँदी होंगी सी, मैनू सुना दे, तेन याद है? मैनू कहती फिर कहते मैनू याद है। मैं थोड़ा जिहा शुरू किया तो उन्हें पूरा सुनाता। वो शब्द सुन के, वो गीत सुन के सज्जन ठगता की जी गीत सुन के, तो एक उतों मैनू लड़क लगी सी रब के नाम की। एक बारी कहते वैर क्योंकि कितने कहते पिता पर पूत नस्ल पर घोड़ा, थोड़ा नहीं तो थोड़ा, बहुता बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता मैं सुना कहती किहड़ा सुनावा? मैं सुना दे हस्ता हस्ता हस्तापुर सी, हस्तापुर का मतलब कि हस्तानापुर पाकिस्तान च, हस्तापुर सी इलाका मुल्तान का। अगों ने शुरू करता कहती उत्थे एक ठग वसदा, उस ठग ने सी मंदिर पवाया दुनिया के ठगने नूं। माफ़ करना गुरु की संगत गुरु नानक के चरणों च गया, अन्न पानी तक खुआया दिल खोल के, पिछू कहता लीड़े ला दो। गुरा आख्या विशंग जी
घरों पहला जाके घरों पुछया, बंदिया पापी गंदिया तेरे पापां दा सहाई कौन बनेगा। एक आ सुनाना उन्होंने। तो अज जो बचपन का सुनते हैं उन्होंने तो अवस्था नहीं सी, पर उन्होंने तो किसी तो सुनिया ही सी। तो मैं अजे भी जो खेतों घूमता हाँ, वो जोड़ा बीज ने वो किवें उगते हैं, माफ़ करना सत्संग जी, तो माता ने सुनाना माफ़ करना। जोत भगवान दी तू, जोत निरंकार दी तू, रूप भगवान दा दुनिया ते आए बंदिया। उन्हें जो सुनाना तो मेरी जी आत्मा सी ना, माफ़ करना, नचन लग पैंदी सी। फिर गुरुद्वारे जाना शुरू करता। गुरुद्वारे साढ़े ग्रंथी सिंह होंगे सन, उन्हें जो पाठ करना करते 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 मैं दूसरी तीसरी पढ़ता सा, जो पंजा बाणियां का मैनू पाठ मुजबानी माफ़ करना याद हो गया। फिर एक ऐसा समा आया 8वीं से मैं सुखनी साह का पाठ गुरुद्वारे जाके करना शुरू करता। पिंड के लोगों ने जो मैं उत्थे सुखनी साह के पाठ की व्याख्या करनी, सारा गुरुद्वारा मैं संगत नाल भर जाना। सत्संग जी कॉल चले गए, लोगों ने कहना मान सिंह आया रात का, और लोगों ने मेरे ख्याल कि सारे पिंड का बच्चा बच्चा गुरुद्वारे च आके बह जाता। उतों फिर मैं एक दिन ज्ञानी जी पुछ बैठा, ज्ञानी जी हर युग गोपा अंदर रख के वाजा पाउण बजाया, बजाया वाजा पाउण 9 द्वारे प्रगट किए है जी। एक ने 10वां द्वार दिखाया। मैं कहना ज्ञानी जी आ जड़ा 10वां द्वार है ये की है। ज्ञानी जी ने फिर कहना कि मानसिया असी तो बाणी पढ़न वाले हाँ, ये 10वां द्वार तो कोई महापुरुष दस सकता। ये 10वें द्वार बारे तो कोई संत महापुरुष चानने पा सकता। क्यों जो अंदर अंतिश करने च नाम के बीज सन ना, ये संत किसी से बनाया नहीं बनते। एक बार कह दे वैरू वो पिछली पता नहीं किन्नी तपस्या होंगी है, हाँ जी, किन्ने माफ़ करना, किन्ना तप किया होंगे, कितनी साधना होंगी, किन्नी घालना होंगी है, तो जाके सत्संग जी कितने जन्मां तू गल सुलेमान ने आख्या ना कभी सागी सुने जब संत मारे उधार किया थी। सुलेमान को पूछा भी एक जन्म च मुक्ति हो जाएगी, मयात हो जाएगी। कहता मयात एक जन्म में, कहता मयात होते होते 4 युग भी लग सकते हैं, सदियां लग सकती हैं। तो सासों पता नहीं वो फिर करते करते ते कर्म चंगे सी ते पढ़ाई च बड़े इंटैलीजेंस। मैनू याद है कि SD कॉलेज अंबाले मैं 1 नंबर तो फेल हो गया। जे मैं चाहता पेपर मैं दोबारा कढ़वा के 1 नंबर मेरा लग सकता सी, पर मेरे नाल होर ही पढ़ते, मैं नहीं यार हुण इत्थे पढ़ना नहीं है। वो कुदरती वो एक उत्थे दा फेल होना। तो मैं फिर एक गज़ल लिखी सी, माफ़ करना एक बारी विद्या च मैं फेल हो गया। संत मर वेख के कविता लिखी सी, इस शायद इस करके तेरा मेरा मेल हो गया। उस तो बाद सत्संग जी असी मैनू किसी ने कहा भी गुरु ग्रंथ साहिब के उत्ते बड़ा कट्टड़ विश्वास। अज ही विश्वास है, सिंह बैठे ने तो सवेरे उठते हैं जो जल पानी छकना होंदा, उस दिन सब तो मंदभागा दिन समझो जिस दिन तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन ना होण। कह दे वैर तो मैं फिर ना पूछ लेना भी गढ़ी साहब पहला गुरु साहब का हुक्मनामा की है। हाँ जी हुक्मनामा सुनाओ, रोपड़ का सुनाओ, जलंधर का सुनाओ, दिल्ली का हुक्मनामा सुनाओ। तो गुरु की संगत इस तरह फिर करते करते ऐसा विश्वास। फिर मैनू जब लटक लगी अपनी हड्ड बीती दस रहा, अज 10वीं का दिहाड़ा, तो मैनू मेरी बड़ी बहस हुई एक ऐसे शख्स के नाल। मैं उन्होंने कहा भी सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब नूं तां गुरता गुरु गद्दी मुक्ति गल की गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे गए ने। खैर सत्संग जी गल दसन वाली नहीं,
खैर उन्हें एक विचार से आके मैनू ढालिया, एक बारी कहते वैरू एक विचार से आके मैनू ढालिया, कह लगा गुरु ग्रंथ साहिब की है 1430 अंग के उत्ते आम लोग पत्रे कहते हैं, असीं अंग कहने जिमें साढ़े शरीर के अंग ने। कहते अगली साध संगत जी पूर्णमाशी ते 10वीं ते विचार करांगे। 10वें पातशाह ने सिखा ने आख्या जी महाराज तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब गुरता गुरगद्दी देती, ऐ करो जी 8 सितंबर को गुरु ग्रंथ साहिब का गुरता गुरगद्दी दिवस है, प्रकाश दिवस है। 8 सितंबर को गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश दिवस है। असीं इत्थे मनावांगे, तुसीं सारे आए हो जी, ते नाले तुहानूं खोल के समझावांगे। तो वो साध संगत जी मैनू कह लगा भी गुरु ग्रंथ साहिब की है, माफ़ करना जी एडी वड्डी किताब कोई हो, इन्ने पत्रे होने वो, तो कहता भी उत्ते बाणी ने लिखी होवे तो तुसीं उहनूं मत्था टेकोगे। मैं कहा नहीं। कहता किनूं मत्था टेकते हैं? मैं कहा असीं तां बाणी मत्था टेकते हैं। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। कहता बाणी नूं गुरु मनदे? मैं कहा जी मनदे हैं। फिर कह लगा भी जिन्नी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, जे किसी महापुरुष नूं याद होवे, उहदे अंदर वसी होवे, उस महापुरुष नूं की आखोगे? मैनूं कोई जवाब नहीं आया, मैनूं कोई जवाब नहीं आया। मैं कहा जी मैं सरदारी में चलांगा, पर कित्थों? पटियाले तो राड़ा साहब 90 किलोमीटर की दूरी पर पैंदा, उत्थे साध संगत जी संगरांद मनाई जाती है। असीं जो गए सैकल से चढ़ के लैके सवार होकर मैं गया, जो गया तो अगे साध संगत जी संत मार ने शान ही कढ़ रहे सन, ट्यून कढ़ रहे सन, तो मैं सैकल में सुट के तो साध संगत उस तरह ही टिकट टुकट मैं ली कोई नहीं, तो मैं उस तरह दौड़ के ना मूँह हाथ तोड़ के, तो मैं साध संगत जी दरबार साहब जिते महाराज कीर्तन कर रहे सन पंडाल दे विच, उत्थे चला गया। जो संत महाराज दूरों कीते दर्शन, मानो कोई सुती आत्मा में जगाउण वाला कोई मुर्शद मिल गया। तो साध संगत जी मैं दर्शन किए, मैनूं इंज लग्या भी ये अज का मिलाप तो लगता नहीं। एक बारी कहते वैरू ये अज का मिलाप तो लगता नहीं, ये तो कहानी कोई पिछली है। खैर साहस मैं उधर ना जावां, वो जिहड़े अंतशकरण के बीज ने वो वधदे गए। संत मार के समय च माफ़ करना गुरु की संगत, उन्होंने तो कोई एक दो युतियां ना दसियां, कृपा की। फिर साध संगत जी ऐसिया बख्शिशां कीतियां उन्होंने। खैर करते करते समा बीत गया। वचन मनना महापुरखों का बड़ा औखा है। साध संगत जी एक बारी कह दे वैरू महापुरखों का वचन मनना ना बड़ा औखा है जी, बड़ा औखा है। पर जिहड़े महापुरखों का वचन मनते हैं, माफ़ करना उन्होंने 4 चन्न लग जाते हैं। साध संगत जी एक एक वचन महापुरखों का बंदे की जिंदगी बदल के रख दिंदा। सो साध संगत जी साडे अंदर अंतशकरण दे विच नाम रूपी बीज पे हैं। माफ़ करना एक सदना होया जी, कसाइयां का मुंडा सी, जिहड़े लोग कहते हैं मांस खा लो जी, झटका करके खा लो जी। हुण जिहड़ा सदना सी वो कसाई सी। जे एक कसाई नूं जीवन की सोझी पई भी मांस खाना जायज़ नहीं, तो खाण वाले नूं तो सोझी पै जानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पै जानी चाहिए कि नहीं। उस सदना कसाई भगत की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज है। ये कुदरती गल है कि जिहो जे माँ बाप कर्म करते हैं वह बच्चे ते असर पैंदा है। दर्जी काम करता है, अगे बच्चे कपड़े सीने सीख लेंदे ने। डॉक्टर काम करते हैं, अगे बच्चे ने जिहड़े दवाइयां देनियां सीख लेंदे ने। जिमीदार काम करते हैं, अगे बच्चे भी जिमीदार का काम सीख जाते हैं। यानी सुनियारियां दे मुंडे सोने का काम सीख जाते हैं। इसी तरह जिहो जिहा माँ बाप कर्म करते हैं, वो माँ बाप के कर्म का बच्चे के उत्ते असर प्या करता है। ये सदना किसानियां का मुंडा माफ़ करना, बकरे वढ़ने, झटकाने, मांस वेचना, पर अंदरों आत्मा जागण की कोशिश कर रही सी। एक बारी कह दे वैरू अंदरों आत्मा जागण की कोशिश कर रही सी। सदने के पिछले कर्म
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਦਨਾ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਦਨਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਸਤੀ 'ਚ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਦਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾ ਰਿਹਾ। ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਕਈ ਗਾਹਕ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਮਾਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਵਾਧੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਦਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ, ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਨੇ। ਕਰ ਲਓ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੇਵਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨੌਕਰ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ ਮੰਗਣਾ। ਸਦਨੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾਸ ਤਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਬੰਦ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਦਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਿੱਖੀ ਕਟਾਰ ਫੜੀ। ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੱਗਾ ਕੱਟਣ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਸਦਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸਦਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਤੜਫਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਸਦਨਿਆ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਦਨੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਟਾਰੀ ਸੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਟਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ, ਘਰ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਰਮ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ। ਅੱਜ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ 3-4 ਵਜੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਦਨੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਦਨੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ, ਲੇਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ।
नानक आखे रे मना, नानक आखे रे मना, नानक आखे सब सुनियो सिख सही, लिखा रब मंगेसिया, बैठा कट लगी लिखे देने, लिखे देने पहले जद ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, बेहोश होके डिग पिया। सिर ते जो टोकरा सी मांस दा, टुकड़े टुकड़े खिंडर गए। तू वेख्या, मैं देखिया, लोकां देखिया, ये सदना ठीक ठीक तुरया जांदा सी, इहनूं की हो गया। लोकां ने संभालिया, साध संगत जी मूँह च पानी पाया। सदना उस दिन कर नहीं गया। एक बारी कह दे वह माँ बाप इंतजार करते रहे, घर नहीं गया। जे जिंदगी की समझ आ जाए किदा प्यो ते किदी माँ, एक बारी कह दे वह किदा प्यो किदी माँ। ना प्यो साडे नाल आया, ना माँ साडे नाल आई, ना असी माँ ना जाना, ना साडे प्यो ने साडे नाल जाना, ना असी प्यो ना जाना। बाणी च पातशाह बख्शिश कर रहे ने, कोई जाने, सारे पढ़ो, कोई जाने। कहते ये तो कोई भी जानता ना, कोई जाने कमन, कमन इहा जग मीत। कहते कोई जाने कमन इहा जग मीत। ये जग संसार किवें मित्र बन सकता है? माफ करना, कोई जाने कमन इहा जग मीत। जिस होए कृपाल सोई विद बूझै, ताकि निर्मल रीत। मात पिता, सारे पढ़ो, मात पिता बंता सुत बंदप। मात माता मात पिता, पिता मां ते प्यो बंदप, साग घर वाली। मात पिता बंदप सुत भाई। सुत कहते पुत्र नूं, भाई कहते भरावां नूं। मात पिता बंता सुत बंदप, बंता कहते घर वाली नूं। मात पिता बंता सुत बंदप। माफ करना गुरु की संगत अंते को ना सहाई। माफ करना गुरु की संगत, किसी ने अंतिम समय ते गुरु की संगत तेरी सहायता कोई नहीं करनी। पर पातशाह कहते जिन्हें तेरी सहायता करनी उन्होंने तो तू पिटते ही बैठा। माफ करना, माफ करना। नानक कचड़िया सिउड़ तोड़, ढूंढ संत सज्जन पक्या। ओ जविंदे विछड़न, ओ मोया जाई ना छोड़। जिस रिश्तेदार चले गए, परिवार वाले चले गए, ते साध संगत जी तां भी प्रीति टुट गई, असी चले गए तां भी टुट गई। पर कहते सतपुरुष ने मरण तो बाद भी साथ नहीं छड़ते। सदना गुरु की संगत निकल गया, घरों निकल गया, बद्रीनाथ दे इलाके में गुरु की संगत चला गया। बड़े बड़े महापुरखों की संगत की। मुक्ति गल कि एक ऐसे महात्मा के चरणों पुजया जिस दी संगत ने सदना का जीवन बदल के रख दिता। गुरु की संगत बड़ी कमाई की थी। गुरु ने कहा जाओ हुण तुसी धर्म का प्रचार करो। इलाहाबाद में पुजया। सास दुनिया ते ऐसे दुष्ट निंदक चुगलखोर लोग भी वसते हैं। साध संगत जी जिवें
गुलाब का फुल पहला मगरू आउंदा है, मगरू खिड़दा है, पर कंडे पहला आ जाते हैं। एक बारी कह दे वैरू, वजीदा खां पहला आया सी, साहिबजादे मगरू शहीद किए गए। माफ करना, गुरु की संगत से विचार करके वेखिए। रंग जे पहला आया सी 9वें पातशाह, गुरु की संगत बाद च आए ने। इहो जे विरोधी लोग कहते ने इलाहाबाद दे विच सदना जी उत्थे साहस प्रचार करने वास्ते पुजे। संगतां दा बहुत भारी इकट्ठ हुंदा, जिहड़े श्रद्धालु जन ने वो फायदा उठाया करते हैं। जदों साध संगत जी सदना जी उत्थे गए, लोगों का बहुत बड़ा इकट्ठ है। इत्थे दा राजा सी, ओहदा साध संगत जी एक किला ठीक नहीं बनता। ये काजी मलाने ब्राह्मण ने जिहड़े उस समय धर्म के ठेकेदार सन, इन्हें वेख्या आखो जात का कसाई सदना ये भगत बन के बह गया। माफ करना, इनू किसी न किसी तरीके का शिकंजा कसना चाहिए। राजा जो किला बनाने लगता, वो किला ढह जाता, फिर बना फिर किला ढह जाता। इन्होंने जाके राजे नूं काजियां मिलाने ने क्या, राजन ब्राह्मणों ने क्या, राजन असी आए हैं, सानू बड़ा दुख है कि तुहाडा किला नहीं बन रहा। तो राजा कहता मेरा किला क्यों बन सकता? उन्हें आख्या जी किला बन सकता याद दा कसाई होवे, ना दा सदना होवे। पढ़ के देखो पिछला इतिहास, महापुरखों को किनिया किनिया मुश्किलातां लंघना पिया, लंघना नहीं पिया। प्रहलाद वर्गिया नूं तत्ते थम्मा ना लाता। भगत ध्रुव की मां ने 2 चपेड़ा जड़ दियां। मुकरी गल की पिछला इतिहास पढ़ के वेखिए। पर साध संगत जी इधर आख्या जी जात का कसाई होवे, नाम का सदना होवे, इहो जिहा कोई संत होवे, दुनिया चंगा सत्कार होवे, ते माफ करना उन्होंने जे किले की नींह दे विच ना किला बनाउण तों पहलां चिण दिता जाए जूदे नूं ते तेरा किला बन सकदा। उन्हें आख्या, राजे ने आख्या वो इहो जिहा बंदा किहड़ा हो सकदा? याद का कसाई भी मिल जाएगा, नां दा सदना मिल जाएगा, प्रभु भगत कित्थे मिलेगा? कसाई दा ते प्रभु भगत दा कित्थे मेल है? उन्हें आख्या जी फिक्र ना करो, अजकल तुहाडे इत्थे इलाहाबाद विच ही ठहरे ने। माफ करना गुरु की संगत, वो कहते हैं माफ करना गुरु की संगत। राजे ने आख्या बुलाओ, सदना जी ने बुलाया गया। आख्या देखो जी महापुरखों वास्ते जिंदगी तो मौत में कोई भिन्न भेद नहीं होंदा। जो छकना छक लो, जो खाना खा लो, जो पीना पी लो। कल नूं तुहानूं किले की दीवार दीयां नीहां विच चिण दिता जाएगा। सदना जी कहते कसूर कोई नहीं, एक बारी कह दे वैरू, कसूर कोई नहीं, दोष कोई नहीं, मेरा घट्टो घट गुनाह ते दसो। राजे लोग अड़ी दे पक्के होंदे ने, हिंड दे पक्के होंदे ने। कहना ये तो नहीं जानता। दूजे दिन पैरों नूं बेड़ियां, हत्थां नूं हथकड़ियां मार के सदना जी नूं जदों कहंदे किला जिथे उसारिया जाना सी ओहदियां नीहां दे विच खड़े कीता गया। 4 फेरे साहब से दीवार बननी शुरू हो गई। माफ करना गुरु की संगत, सदना जी उस दीवार के खड़े, शब्द बहुत लंबा है, बहुत दूर नहीं जाना चाहता। सदना जी ने ये बड़ा कुछ बयान किया अपनी बाणी च। निरप कन्या के कारणिक भया भेखधारी, कामा अर्था स्वार्थी वाकी पैज सवारी। वो सदने ने आख्या फलाना पखंडी सी, उन्हें पखंड किया तो वही लाज भी रखी सी। मैं तो तेरा असली भगत हाँ, मेरी मदद कर। रब नाल गल हो रही है, एक बारी कह दे वैर। आले दुखा सुख वाले लोग आते हैं ना, ये समझते हैं कि संत एवं मूँह ला लेंगे। साध संगत जी ये तेरी सूरत रब दी है सूरत। आ गुरु ग्रंथ साहब तेरी सूरत रब दी है सूरत। असा रब नूं तक के की लेना? ये गल्लां ने सज्जना राज दियां अस जग नूं दस के की लेना? साडे महापुरख क्या करते सन? कहते 4 बंदे फायदा नहीं उठा सकते, 4 लोग। पहली गल तो वो कुल फायदा नहीं उठा सकती।
ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਗੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਾਰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਮਾਰ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰ ਦੁਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਭੌਰ ਸੈਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਜਲਵਾੜੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ 3-4 ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਬੰਧੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸਦਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰੋਗੇ। ਆ ਕੰਧ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ ਨਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। शरनागत जगत गुराह, जो कर्म न नस है, तेरी शर्म च आउण दा की फायदा। महाराज सिंह शरण कत जाइए, जे बब्बर शेर की शरण च रह गए गिदड़ा नहीं खा जाना, तो फिर उस बब्बर शेर की शरण का फायदा ही की है। परमेश्वर ने आख्या सदनिया कि जठानियां दरानियां वाले मेहने भिड़दा वो वेला याद कर जदों बकरे मार मार के खांदा सी। कर्म कीते ने ना तू, वो कीते ने ना, जदों तू बकरियां मार मार के खांदा सी, हुण मेहने मेहने भिड़ रहे हैं, मैं करदा तेरी मदद, हौसला रख, मैं तेरी मदद करदा। कद बनती जा रही तमाशा वेखण वाले इस समय समय लोग ना बहुत होंदे ने,
पिछले समय जब कालियां नेरियां चुलियां माफ करना अखबार दसते सन महापुरख बैठे ने थे आ वेख्या भेवेले की सुर्खी लगी है आ टीवी से देखो की हो रहा फलाने की हो रहा। साध संगत जी जे बब्बर शेर नूं हथ पा के ना जे कोई कहे तो मैं बाजा बज नहीं सकता। डर तो हुंदा बेखसमियां नूं, खसम वालियां नूं कहदा डर हुंदा। एक भेडां बकरियां चारन वाला गडरिया भेडां बकरियां चार के जा रहे हैं। जब भेडां बकरी चार के जा रहे हैं एक बकरी का लेला पत्तन सी दरिया सी रस्ते विच मिट्टी चीकनी सी लेला विच फस गया। वो बेचारा अगे निकल गया सर्दी के दिन सन ते साध संगत जी जदों चला गया उधर एक बघियाड़ आया। बघियाड़ लेले नूं वेख के हसिया, लेले नूं वेख के बघियाड़ हसिया ते माफ करना लेला कंब उठिया भी हुण मैनूं मारेगा। पर जो थोड़ा जिहा अगे वधिया ना 10 फुट अगे जाके तो गिद्दड़ भी माफ करना कहते हैं कि बघियाड़ भी उस मिट्टी च फस गया। बघियाड़ कोशिश करता है बिचों निकलिया पर निकलिया नहीं जाता। उदों लेले ने आख्या मित्रा ते गया एक बारी कहो वैरू कहता मित्रा आ ते गया पर गल सुन लै मेरी। कहता जे तू फसदा ना तो तू तो मैनूं मार देना ही। कहता आ ते तू गया तेरा मालक कौन है पर जदों कल सवेरे मेरा मालक आवेगा ना ओदे हथ 2.5 हाथ लंबी डांग होएगी लाठी होएगी जो तेन कुटूगा ना आके। कहता तेनों पता लगेगा कि खसम वाले नूं हथ किवें पाईदा। एक बारी कह दे तेनों फिर पता लगेगा भी खसम वाले नूं हथ किवें पाईदा। उधर लेले नूं नींद नहीं आती, उधर गडरिया नूं नींद ना आई कि मेरा लेला पिछे रह गया। दिन निकलते सारी उन्हें लाठी फड़ी ते गया दरिया के कंढे ते गडरिया ने वेख के लेले दी अखां च हंझू आ गया मेरी जान का राखा। एक बार कह दे आ गया हुण मेरी जान का राखा। बघियाड़ कंब उठिया उस गडरिया ने 5-4 डांगा या लाठियां बघियाड़ दे मारियां। उस मौके लीले ने आख्या क्यों लगा पता भरी सभा विच ओहो लोग कहते हैं धर्मी सन भीशम पितामह वर्गे धर्मी सन कर्ण वर्गे दानी सन फलाना इंज सी सभा मन सोना दान करता सी। माफ करना गुरु की संगत और जिस सभा दे विच पांडवां दी धर्म सुपतली जिस घराने की नूह भैन नगड़ की जाए तुहाडा ख्याल है वो ताए सौरे जेठ जोर क्या अपने सन। माफ करना खालसा जी उत्थे शर्म वाली कोई गल रह गई सी। जदों अर्जन ने गीता का उपदेश दिता है अर्जन ने वेख्या सामने दुर्योधन खड़ा है, सामने दुशासन खड़ा है, सामने माफ करना 101 भरा खड़े हैं मेरे ताए के पुत्र। उस समय अर्जन के नेत्र बंद हो गए। कृष्ण भगवान कहते की गल हो गई। कहना मैं नहीं लड़ूंगा, कहना मैं नहीं लड़ूंगा, भीख मांग के खा लूंगा, मांग के खा लूंगा, मजदूरी करके खा लूंगा। कृष्ण भगवान ने आख्या है कहना वो मेरे रिश्तेदार खड़े हैं। कृष्ण भगवान ने आख्या तेरे रिश्तेदार ने सालिया कहना जनानी तुहाडी नंगी करती राज तुहाडा खोलिया जे देश निकाला जूए तुसीं आ रहे देश निकाला तुहानूं दिता जा रहा। कहना जब जंग के मैदान च आ जाए एक बारी कह दे वैरू जदों कोई जंग के मैदान च आ जाए माफ करना मित्र मित्र नहीं रह जाता, भरा भरा नहीं रह जाता। नौवें पातशाह की बाणी आउंदी भै कहू को देत में है
ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਖੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਣਾ ਫੜੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਮਾਨ। ਫਿਰ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਾਣੀ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸੋ ਕਿਉਂ ਡਰੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸੋ ਕਿਉਂ ਡਰੈ ਜੀ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੈਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਰ ਡਰ ਮੂਹੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ। ਡਰ ਡਰ ਮੂਹੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਡਰਨ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਸਮਾਂ ਮੇਨੇ ਪਿੜਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਦੁਆਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਸਦਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ। ਸਦਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ तेरे नाम लाज ना लगे। द्रौपदी ने भी यही किया सी। पंचाली को राजसभा में राम नाम सदे आई। माफ करना मैं तेरा ते आया ना गरीब नवाज मैं नहीं कुछ हो नहीं कुछ आहे न मोरा अवसर लज्जा रख लो। सच्चे पातशाह हुण समा बने ते अद्धा अद्धा पढ़ लियो। जी मैं तेरा सच्चे पातशाह। तेरा जी मैं तेरा सच्चे पातशाह। रख ले गरीब जान के कहते ने कौतक अनोखा वरत्या। किले की दीवार ढह गई। दीवार दियां किला इट्टां इखड़ खड़ के किसी ने मत्थे ते किसी ने नक ते किसी दे दंद टुट गया किसी दियां बाहां ते वजी। सदना इस तरह सुरक्षित सी जिमें मक्खन दे विचों वाल कढ़ लिया जाता है। साध संगत जी बादशाह ने अपनी गलती का बड़ा एहसास होया। सदना घर चला गया। कहते ने बादशाह दे पेट विच इहो जी दर्द उठी। अगे वैदगिरी हुंदी सी बड़े बड़े सियाणे वैद हुंदे सन। वैदा ने बड़ा इलाज किया पर दर्द रुकन का ना नहीं लैंदी। माफ करना कहते वेद मुखे ते बोलते से बचन हुमंदे। जेड़े साध संगत जी 7 वर्ष दे सरापे ने वैर करन निर्वैर नाल बिना मतलब तो महापुरखों की निंदा करी जाणगे उन्हां दी करी जाणगे। माफ करना जेड़े एक 10 दिन घर नहीं छड़ सकते जिन्हां जिंदगियां रब दे लेखे लातियां ने ते उन्हां दी निंदा फिर करके किसी ने मरना ही है बचना कित्थे। एक बारी कह दो हैरू वो माफ करना कि सारी रात हाय हाय करदे गुजरी। बादशाह ने सवेरे वजीरां नूं आख्या जाओ सदना जी ने मेरे पास लैके आओ बेनती करो। तुम बादशाह ने याद किया। जो सदना जी नूं लैण वास्ते गए महाराज तुम बादशाह ने बुलाया। कहने लगा की बुलाना की जाना। वो राजे लोग ने असीं गरीब बंदे हाँ माफ करना। आख्या जी तुम बादशाह ने कहा बुलाया कृपा करके चलो। जदों सदना जी
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪੁੱਜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰਿੜਦਾ ਖੁੜਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਧਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਸ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਚੌਦਸ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਪ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਜਾਪ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਿਓਰ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਸ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ।